Very good. Most Reverend Swami Jagannath Yatraji, dear colleagues and students, today we are indeed impressed with the presence of Swamiji, and you will be wondering to know that Swamiji is a Navodaya student. He is a student of JNV Bhusawal, Maharashtra, and he had his higher education as a mechanical engineer, so by profession he is a mechanical engineer. Okay. Then he found another chord, that is the divine chord, divine vocation from the God, and he decided to serve the humanity. He has sacrificed his entire life and devoted his entire life for the service of humanity, and his way of service is something different. That is inspiring, motivating, and instilling hope and life in the young minds, especially the young minds of Navodayas. He has already visited many Navodayas, more than 120, I think. 120. Yes, this is the 121st Navodaya that he is visiting. Besides, he has visited more than 1,000 schools and spoke to students about life skills, life sciences, and the art of living. So, I'm indeed very pleased to introduce Swamiji in front of you and try to learn at least one or two lessons on life sciences that Swamiji can share with you. And you should always try to learn at least a few things that anyone can learn. And this is a golden opportunity for you. And I was also telling Swamiji, we don't know who can inspire and who can change someone's life. Maybe it is today Swamiji that who can bring a spark in your life and entirely change your outlook, your perception towards life. So, without taking much time, I invite Swamiji and welcome Swamiji on behalf of entire Navodaya Haveri, on behalf of Principal Sir, all the staff members, and all of you. Welcome, Swamiji. Hand over the mic to Swamiji. Please continue. This mic. No need of stand. This mic. Yes. So I thank our dear Sri Thomas sir and our principal sir and all teachers to give me this opportunity to serve here at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Hanagal of Haveri district of Karnataka. आप लोग हिंदी समझते हैं? Yes, राष्ट्रभाषा तो हिंदी भाषा जो है अपना देश का भाषा है, तो हम इंग्लिश तो बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिल की बात जो है या अपना जीवन की बात जो है अपनी भाषा में ज़्यादा समझ में आती है. लास्ट वॉइस कैन यू लिसन मी? आप लोग सुन पाते हैं? थैंक यू. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में आया हूँ. मुझे अपने दिन याद आते हैं नवोदय के, जब मैं 27 साल पहले एडमिशन लेकर 5 साल बिताया था और फिर 1998 पास आउट हुआ था 1998 में. आई वॉज इन 7th बैच एडमिशन, नवोदया 7th बैच. तो एडमिशन लिया था ऑलमोस्ट 32 साल पहले एडमिशन लिया था. फिर 27 साल पहले हम नवोदय से पास आउट हो गए 10वीं के बाद. उस समय बहुत जगह साइंस 11th 12th नहीं होता था, तो हम लोग फिर नहीं रह पाए थे, स्टेट बोर्ड में गए थे. मैं अपनी बैच में 10th क्लास में JNV में टॉपर था अपने बैच का,
और फिर 12th साइंस में स्टेट बोर्ड में सेकंड टॉपर था। तो पढ़ाई में बहुत आगे था। जैसे नवोदय समिति हमें गाइडलाइन देती है, कम टू लर्न। तो मुझे ये था कि सीखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा ज्ञान लेना है। तो मुझे हमेशा मोटिवेशन था, केवल एग्ज़ाम का नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम सोच के हमें दिमाग है ना जाम होता है, एग्ज़ाम। तो हमें यदि आनंद चाहिए, अच्छा खुशी चाहिए पढ़ने में, तो मोटिवेशन क्या होना चाहिए? ज्ञान लेना है, सीखना है। ऐसा नहीं कम टू गिव एग्जाम्स, नो, कम टू लर्न। समिति बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट समिति बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से बताती है कि अपना मोटिवेशन जो है क्या होना चाहिए? लर्निंग। हाँ, मोटिवेशन क्या चाहिए? अपना लर्निंग, सीखना है। तो मन लगेगा, आपको अनुभव होगा कि बहुत समय पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत समय हमें तनाव आता है या बहुत मन भटकता है। आपका कभी ऐसा होता है? किताब खोलने के बाद होता है कभी ऐसा? नहीं होता है ना? क्यों होता है? यस, दिस इज कॉमन प्रॉब्लम ऑल स्कूल्स। कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, सबके लिए मन चंचल है, मन बड़ा कठिन होता है संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अपना जो मोटिवेशन है वो ठीक होगा तो फिर मन को हम सही रूप से ध्यान लगा सकते हैं। ओके, दिस इज वन पार्ट कि अपना जो मोटिवेशन है क्या होना चाहिए? लर्निंग मोटिवेशन चाहिए, नॉट जस्ट मार्क्स। क्यों? जो कुछ होते हैं मार्क्स वो केवल कागज़ पर होता है, कागज़ पे अंक होते हैं, या समाज में कोई उसको देखने वाला नहीं है कितने मार्क्स आए थे। समाज देखेगा आपके पास कितना ज्ञान है और कितना गुण है, सद्गुण, गुड क्वालिटीज, क्या बोलते हैं? क्वालिटीज, गुण, सद्गुण। लोग वो देखते हैं, बिना पूछे आपको देख के समझ जाते हैं कि आप में कैसे गुण हैं और आप में कैसा ज्ञान है। कागज़ पे क्या है? अंक है, मार्क्स। लेकिन समाज क्या देखता है? लोग आपका गुण और ज्ञान देखते हैं। तो अपना फोकस क्या होना चाहिए कि अपने अंदर अच्छे गुण लाना है, क्वालिटीज। वी हैव टू कल्टिवेट, वी हैव टू इम्बाइब द गुड क्वालिटीज in our life. Why? That will make our life valuable. So I speak about life values. Why values? Because values make our life valuable. Without values, life has no value. Simple words I am speaking. That then there are many types of values. Business values, ethical values, moral values, and life values. The most important, the most precious, सबसे अनमोल, सबसे महान जीवन मूल्य है। क्यों? जीवन सबसे मूल्यवान है। लाइफ इज द मोस्ट प्रीशियस, जीवन सबसे महान है। हाँ नहीं? प्रत्येक वस्तु का कोई मूल्य होता है। मोबाइल का कोई मूल्य है, वैल्यू, कॉस्ट। कोई मशीन है, उसका एक मूल्य होता है, कॉस्ट, कीमत। प्रत्येक वस्तु का मूल्य होता है, कम ज़्यादा, छोटा कम मूल्य या बड़ा मूल्य होता है। जीवन का मूल्य सोचो कितना है? हम बोल नहीं सकते, अनमोल है। क्या बोलते हैं? अनमोल। इनवैल्यूएबल मतलब क्या है? कुछ वैल्यू नहीं है? नहीं, मोस्ट वैल्यूएबल। जीवन मोस्ट वैल्यूएबल। दुनिया का कितना भी पैसा, ऑल द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड, दुनिया का संपूर्ण संपत्ति, जीवन का एक दिन भी खरीद नहीं सकते। कैन यू बाय टाइम विथ मनी? नो। हम ऐसा बोलते हैं कि समय बड़ा मूल्यवान है तो बोलते हैं टाइम इज मनी, बट रियल सेंस में टाइम इज नॉट मनी, बिकॉज विथ ऑल द मनी वी कैन नॉट बाय इवन शॉर्ट टाइम। थोड़ा समय भी हम खरीद नहीं सकते पैसे से। सो वी हैव सम टाइम नाउ इन नवोदया JNV, वी हैव सम टाइम। मैक्सिमम वी हैव 7 years, 6 to 12. We have 7 years. It's a big time. It's a big time. 7 years is a big time to make our life the best possible.
What is the best possible? As per our capacity, as per our nature, as per our desire, will. Don't compare with anybody. Oh, he is getting 90 plus marks, I am getting only 85 marks, 80 marks, I am not so successful. No, this is wrong thinking. Success is not in marks. Success is possible for all. जो सक्सेस होता है, यश जो है ना, कामयाबी, सक्सेस इज पॉसिबल फॉर ऑल टाइम. वी ऑल कैन बी सक्सेसफुल ऑल टाइम, ऑल प्लेसेस. हाउ? कैसे हम हमेशा सक्सेसफुल, कामयाब हो सकते हैं? आई गिव वेरी सिंपल डेफिनेशन. बहुत अच्छा एक ना उसका व्याख्या है. क्या है? बोलो. सक्सेस इज our best possible endeavor. Success is our best possible endeavor. You understand what is the meaning of endeavor? Efforts, ना, efforts, endeavor, प्रयास, कोशिश कि हम अपने अपने काम में, in our work, in our studies, in our any activity, any competition, any work, if we do, if we put the best possible efforts, जितना ताकत है, जितना मेहनत है, जितना अपना क्षमता है, बुद्धि है, तो लगाएंगे तो आप सक्सेसफुल हैं. You can be happy with your life. See, जीवन का सुख लेना सबसे आसान है, अपने हाथ में है. बिकॉज ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड. बोलो. हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड. मन की स्थिति, मनस्थिति, मन की स्थिति, मनस्थिति अपने हाथ में है कि अपने मन को कैसे ना कंडीशन देना है, कैसे उसको रखना है. मनस्थिति अपने हाथ में है. दी सर्कमस्टांसेस, कंडीशनिंग, आउटसाइड कंडीशंस, उसे बोलते हैं परिस्थिति. क्या बोलते हैं? परिस्थिति. परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, कंडीशंस, आउटसाइड कंडीशंस. लेकिन मनस्थिति अपने हाथ में. वी कैन नॉट चेंज एक्सटर्नल कंडीशंस, बट वी कैन ऑलवेज चेंज, एडजस्ट अवर मेंटल कंडीशंस, स्टेट. ऑलवेज वी कैन एडजस्ट. We can be always peaceful, we can be always happy and feel joy of life. See, in my own experience of Navodaya and then my college life and then professional life, job, doing lectureship in engineering college after my BTech in Mumbai, I have seen that we all are missing the joy of life in the name of searching for, you know, more and more for future. हम जो है सोचते हैं भविष्य में हमें सुख मिलेगा. We think future will give us happiness, which is not possible. You can, because life is not in future, life is in present tense. Future is always unknown, uncertain, but present life is in our hands. So मुझे समझ में आया कि हम बहुत समय सोचते हैं मुझे 10th क्लास में, 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे ना बहुत आनंद आएगा, समाधान मिल जाएगा, आई विल बी हैप्पी, सेटिस्फाइड. ये मिल जाएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा. वी ऑलवेज डिपेंड ऑन फ्यूचर टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एंड सो वी मिस द प्रेजेंट लाइफ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट या सजेशन दैट never depend on future to be happy and satisfied, because you can be happy and satisfied now also, present time also you can be happy, and our life is always in present, not in past, not in future. Past is gone, we don't know, means it is gone, we can't do anything, and future is unknown, yet to come, आने का बाकी है, we don't know. So I will suggest that आप लोग जो है हमेशा सोचें कि जीवन का उद्देश्य, गोल ऑफ लाइफ है,
he is not just getting a job, just some money, just some material things like home or vehicles or some short-term prestige. Goal of life is to get the bliss of हार्ट, हृदय का आनंद मिलना चाहिए. और बोले हार्ट्स जॉय, वी शुड गेट द जॉय ऑफ और हार्ट्स एंड देन फुलफिलमेंट, एनलाइटनमेंट. कि जीवन पता नहीं कि जीवन जो है ह्यूमन लाइफ और एनी लाइफ जो भगवान दिए हैं, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज़ अवेलेबल. हमें पता नहीं किसी को कि अपना जीवन पता नहीं कितना समय है. बॉडी जो है अपना बॉडी, फिजिकल बॉडी ये टेम्पररी है, परमानेंट है. फिजिकल बॉडी जो है, ये जो फिजिकल बॉडी है, फ्लेश एंड बोन फिजिकल बॉडी, ये परमानेंट है, टेम्पररी है. हाँ, लड़कियां क्या बोल रहे हैं, गर्ल्स? फिजिकल बॉडी अपना हमेशा के लिए है या थोड़े दिन के लिए है? हाँ, यस. बॉयज क्या बोलते हैं? थोड़े समय के लिए कि हमेशा के लिए बॉडी? हाँ, यस. इफ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, आपको मैं एक और सवाल पूछता हूँ. डू यू नो हाउ मच टाइम दैट बॉडी विल लास्ट? शरीर अपने पास कितने दिन के लिए है? किसी के पास सर्टिफिकेट है, लाइफ टाइम सर्टिफिकेट? डॉक्टर ने दिया होगा जन्म के समय, माता पिता दिए होंगे आपको, या आपने PM CM दिए होंगे कोई. Nobody can give a lifetime certificate. But life is divine. Life is divine. Life is very valuable. Why? It is a chance to attain the permanent life. Body is temporary. We all are wanting to have permanent life. Not just permanent, happy, blissful, youthful life. We want. We are looking for. We wish to have a happy, young life for all time, if possible. Do you? आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? दो ऑप्शन देते हैं आपको कि एक जीवन है 2 साल का, एक जीवन है सदा के लिए, फॉर ऑल टाइम, यंग, फुल, हैप्पी, है ना, हेल्दी लाइफ. कौन सा लेंगे आप? सेकंड ऑप्शन, हेल्दी, यंग, फुल, हैप्पी लाइफ. विल टेक. व्हाई? इट्स अ नेचर. हुज नेचर? इट्स अवर नेचर, नॉट बॉडी नेचर, अवर नेचर. आई विल कम टू द पॉइंट. अवर JNU logo has 2 important words in the लोअर पार्ट. लोगो जो है 2 शब्द है नीचे. प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दैट प्रज्ञानम ब्रह्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रज्ञानम ब्रह्म? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग दोज वर्ड्स इन द JNU लोगो? आप सब पे T-शर्ट पे हैं, सब बेल्ट पे होता है, बेल्ट पे, टाई पे, सब जगह होता है लोगो में. तो उसका पर्पस, उसका मीनिंग पता होना चाहिए. आई शेयर. आपको पता है? किसी को बता सकते हैं? See, the most important logo has only 2 words. If we don't know the meaning of these 2 important words, we are missing our main focus. हमें ना समझ में आना चाहिए कि ये 2 शब्द जो है बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, तभी तो दिया है सब जगह लोगों में. मैं बोलता हूँ तो ज्ञान, पता तो ज्ञान, नॉलेज वो अनेक प्रकार का होता है. फिजिक्स नॉलेज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, लैंग्वेज नॉलेज, कल्चर, मेडिकल साइंस, टेक्निकल साइंस, सब नॉलेज है. बट प्रज्ञानम, सिद्धि, प्रसिद्धि, मुख्य, प्रमुख, प्र, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स. यहाँ पे क्या जोड़ दिया है? प्र, विशेष, स्पेशल, प्र. तो प्रज्ञानम
कि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात विशेष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है जीव, जीवात्मा, इंग्लिश में डिवाइन सोल, पवित्र आत्मा और दिव्य आत्मा। एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, ध्यान दीजिए। एक फिजिकल बॉडी है मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स। आप चेक कीजिए अपने बॉडी में कुछ अलग है क्या? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या फ्लैश एंड बोन्स है? कैन यू चेक, कंफर्म? कोई डाउट है? फ्लैश एंड बोन नहीं सर, और डायमंड भी है, थोड़ा गोल्ड भी है, थोड़ा प्लैटिनम भी दिखता है कहीं। फ्लैश एंड बोन्स ओनली, फिजिकल बॉडी, फ्लैश एंड बोन्स। बट वी आर नॉट द फिजिकल बॉडी। आप लोग ऐसा बोलते हैं कभी? सर आई एम फैट बॉडी, I am slim body, I am tall body, I am short body, I am black body, I am white body। कोई ऐसा बोलता है? Nobody says। ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स प्लीज फोकस। आई एम यूजिंग chosen words। Nobody says I am body। Nobody says I am body। We all say this is my body, that is your body। Means what? कॉमन सेंस वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं बॉडी एक अलग है, हम एक अलग है, बहुत समझना आवश्यक है। बायोलॉजी टीचेस अस ओनली बॉडी साइंस। बायोलॉजी टीचेस अस ओनली बॉडी साइंस, नथिंग एल्स। प्लांट बॉडी साइंस बॉटनी, एनिमल बॉडी साइंस जूलॉजी, ह्यूमन बॉडी साइंस एनाटॉमी, है ना? एनाटॉमी इज एनाटॉमी, ओनली बॉडी साइंस। यू सी ऑल syllabus, even MBBS course, MD, MS course, it is only about body study, nothing about mind, which is so important, nothing about intelligence, which is more important, nothing about ego, which is also important, ego, and then most important, our self, real self, जीव, आत्मा, spirit soul, nothing about this, because of which life is there. If soul is missing the body, listen, if soul goes out of body, will body exist? Will body survive? Will body be maintained? No. Body is being maintained because soul is there in the body. The moment soul leaves the body, body starts decomposition. So we should know that our real self, body is our self, but not real self. Body is our temporary self. But our real permanent self is soul, divine soul, and that is known as Brahma. So what is Brahma? जीव। देखो, जीव है तो जीवन है। This table we say non-living, atom। There is no jiva inside a table। Is there jiva in the table? So we say nirjiva। क्या we say? Nirjiva। And all our bodies have soul, so that bodies become sajiva, means jiva is there and jiva is not there. So this jiva is the cause of jivana. See the words, jiva is the cause of, or jiva is the basis of life, जीवन। जीव नहीं तो जीवन नहीं, जीव है तो जीवन है। तो अपने बायोलॉजी में मुझे बताओ, केवल बॉडी का स्टडी है, मन, बुद्धि, अहंकार और जीव, आत्मा कुछ भी नहीं है, इसलिए दैट इज मिसिंग। दैट्स व्हाई सच सेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू गिव अस लाइफ नॉलेज। ब्रह्म ज्ञान, व्हाट इज ब्रह्म ज्ञान? लाइफ नॉलेज। व्हाट इज ब्रह्म? जीवा। वी जीवा, जीवा मीन्स वी
सोल इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन पार्ट ऑफ गॉड। हम जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना शिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु। You sing this prayer? Yes, in Navodaya we sing this prayer also. इतनी शक्ति हमें दे मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम गाते तो हैं लेकिन भूल के बाद भूल करते रहते हैं। समझते नहीं हैं कि भूल हमें नहीं करना, कम से कम एक वही बार एक ही भूल नहीं करना है, नया भूल करना है। Do mistakes, but new mistakes. You learn something new. Okay, so till now I have given some brief idea about my session कि हम जीवन की बात बोल रहे हैं। आपको मैं अनुभव देता हूँ कि हम सभी भगवान के हैं ना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं, सब पूजा पाठ के बाद बोलते हैं ना, भगवान का जो आरती होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा, तुम्हें सुना है कभी? आपके बोलते हैं त्वमेव विद्या, हाँ त्वमेव विद्या त्रिवणम त्वमेव सर्वम मम देव। तो मुझे ये बोलना है, ये तो सच है कि भगवान हैं, माता पिता उसकी पहचान है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। यदि हम विश्वास दिखाएंगे, इफ वी कीप द फेथ देन यू विल गेट द स्ट्रेंथ। विश्वास होगा तो शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आगे भी बहुत अच्छा है। दूर अज्ञान की हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते हैं हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। मुझे ये बोलना है, हम कुछ नई बात बोलने नहीं आए हैं नवोदय में। हमने जो सुना नवोदय में, जो हमने समझा और जिसका पालन किया और अनुभव लिया, किसका अनुभव लिया कि हम सभी भगवान के हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं। केवल शक्तिमान नहीं, अपना भी है, अपने साथ भी है। कहाँ पे साथ में? हृदय में। जो बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में होते हैं। हम जीवात्मा, आत्मा, भगवान है परमात्मा। हम कहलाते ब्रह्म, भगवान को बोलते परब्रह्म। ब्रह्म परब्रह्म, आत्मा परमात्मा। तो ब्रह्म मतलब जीव। मुझे आपका अनुभव देना चाहूँगा कि केवल कल्पना नहीं है, कैसे हम भगवान का नाम लेने से, भगवान का कुछ प्रणाम करने से हमें कितना लाभ मिलता है। मन शांत होता है, बुद्धि शुद्ध होता है और फिर एक आनंद अनुभव आता है। आप लोग सब सीधा बैठिए, सब सीधा बैठिए। विल डू शॉर्ट प्रेयर जिसमें कुछ भगवान का नाम है, कुछ प्रणाम मंत्र है, बस वही शॉर्ट टाइम। आप चाहते हैं कि नहीं अपना मन शांत हो, अपनी बुद्धि तेज हो, हमसे गलतियां ना हो, जीवन में आनंद हो, चिंता ना हो, तनाव ना हो। चाहते कि नहीं? तो यस,
तो हमने पाया है। कैसे पाया है? ये समझकर कि हम भगवान के हैं और भगवान अपने साथ हैं। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया। तो यही बात कि अपना साथी, कंपेनियन, ऑल टाइम कंपेनियन, टू गिव अस लव, टू गिव अस अफेक्शन, टू गिव अस सोलास, टू गिव अस एम्पावरमेंट इज विथ अस भगवान। और माता पिता भी है, बंधु सखा सब कुछ है। हाउ विल यू एक्सपीरियंस? अनुभव कैसा आएगा? तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। हम सब साथ मिलके कुछ प्रेयर्स बोलेंगे जिससे आपको अनुभव आएगा कैसे मन शांत होता है, सारे विचार जो अनावश्यक है बाहर निकल जाते हैं, एक मन में अच्छी प्रसन्नता आती है। सो प्लीज़ जॉइन द हैंड्स विथ योर चेस्ट। अपनी छाती से अपना हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए, क्योंकि बहुत समय आंखें खुली है तो फिर मन भटकता है। आंखें बंद कीजिए। साइलेंस प्लीज। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। सीधा बैठना है, बैक जो है सीधा, बैकबोन सीधा रखिए, स्ट्रेट। साइलेंस प्लीज। बोलो। असतो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमये, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, नीलाचल निवासाय, नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम, जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे Slowly you can open your eyes now. Slowly आंखें ऐसा खोल सकते हैं. Do you feel some good experience? अच्छा लगा आपको? कि मन जो है शांत होता है. बाकी जो विचार मन में कभी चलते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. अनावश्यक विचार, unnecessary thoughts go away. You get positivity in your mind, your heart. एक अच्छा अनुभव आता है. बच्चों यहाँ लिखा है ऊपर सत्य ही ईश्वर है. यहाँ लिखा है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. हार्ड वर्क एंड देन मुझे एक आदत बचपन से है कि जो कुछ लिखा होता है विचार, गुड थॉट्स, तो मैं पढ़ता हूँ और सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए, हाउ टू फॉलो दैट मैसेज. तो उससे क्या होता है, हमें शक्ति मिलती है. केवल पता है मुझे, लेकिन यदि उसका पालन नहीं किया, इफ वी डोंट फॉलो द मैसेज ऑफ द थॉट्स, देन वी डोंट गेट एम्पावरमेंट. हमें शक्ति नहीं मिलती है. जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि इंडिया इज माय, देखो आप बचपन से बोल रहे हो कि भारत किसका देश है? हाँ, हमारा, मेरा देश है, माय कंट्री. तो आप कितने धनी हैं, आप कितने अमीर हैं, वेल्दी, पूरा देश आपका है. लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं. हम बस नाम के लिए बोलते हैं प्रतिज्ञा, प्लीज बिग थिंग. और सब लोग आपको बोल रहे हैं बोलो कि भारत किसका देश है? अपना देश है, हमारा देश है. लेकिन हम सोचेंगे नहीं इसका मतलब क्या है, तो हमें भी आनंद नहीं मिलता. हम सोचते हैं सर हम बड़े गरीब हैं, हमारा ज़मीन कम है, घर छोटा है, धन कम है. लेकिन बोल क्या रहे हैं बचपन से कि भारत किसका देश है? मेरा देश है, मेरा, माय कंट्री, माय कंट्री. तो आपका इतना देश है बड़ा, आप छोटा कैसे हो गया, आप गरीब कैसे हो गए? ये अपना अज्ञान. हम सोचते हैं कि हम बड़े बदनसीब है, कम नसीब वाले हैं. नो, अपना जो संस्कृति है वो तो हमें इससे भी बड़ा कुछ देता है. वसुदैव कुटुंबकम. ये तो हम प्रतिज्ञा ले कि भारत मेरा देश है, लेकिन अपना जो संस्कृति है वो इससे भी बड़ा हमें ज्ञान देता है या धन देता है. क्या धन देता है? नॉट जस्ट वन स्मॉल कंट्री, होल प्लानेट, पूरा विश्व आपका सुंदर सुखी परिवार है. वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम. और हम बोलते हैं कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. लेकिन यदि हम मानेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो हम सोचते हैं कि हम केवल 2 भाई बहन हैं, हमें कोई ज़्यादा फैमिली कोई नहीं है. बच्चों
हमें समझना चाहिए कि हम जब भगवान के बच्चे हैं तो हम सभी केवल देशवासी नहीं, पूरा दुनिया अपने भाई बहन है, फैमिली है। वसुधा मतलब पृथ्वी, प्लैनेट अर्थ, वसुधा ईव मीन्स लाइक ईव कुटुंबकम, लाइक अ फैमिली, डिवाइन फैमिली। बच्चों, हमें जीवन का अनंत समाधान, सब सुख मिला है। कैसे? भगवान से अपना संबंध जानकर, समझकर। हमने केवल गाया नहीं, तुम ही हो माता पिता तुम ही, हमने उसको समझा, अपनाया, एक्सेप्ट किया। यस, हम सभी भगवान के बच्चे हैं और भगवान तो एक ही है। सबका मालिक क्या बोलते हैं? सबका मालिक एक भगवान है, जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं। आप देखिए, आप लोग पेंटिंग बनाते हैं, नवोदय के बच्चे अच्छे पेंटिंग बनाते हैं, स्केचेस पेंटिंग हम भी बनाते थे। तो आप नीचे नाम लिखते हैं अपना पेंटिंग के बाद? यस, लिखते सर। कोई तो बनाया होता है तो फिर नाम तो लिखना पड़ता है, कौन बनाया बोलते। मुझे बताओ, ऐसा कोई आपने पेंटिंग देखा है नोटिस बोर्ड पर जो कोई बनाया नहीं, अपने आप है ना, फ्लाइंग कलर्स, ऐसे उड़ते उड़ते कलर आया, होली का रंग आया उड़ते उड़ते, ब्रश भी बीच में घुस गया और फिर कागज पे पेंटिंग बन गया और नोटिस बोर्ड पे भी दूसरा हवा का झोंका के साथ चिपक गया। ऐसा कोई पेंटिंग देखा है नवोदय के बोर्ड पे? यस, हमने कभी देखा नहीं है। तो क्यों? पेंटिंग बनाने के लिए कोई चाहिए, कलाकार, बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, उसका विचार चाहिए, कला चाहिए। तो मुझे बताओ, इतना सुंदर दुनिया बना है। अब देखो, जमीन तो एक ही होता है, लेकिन एक पेड़ जो है गुलाब का फूल देता है, एक पेड़ गेंदा का फूल देता है, एक चमेली का फूल देता है, एक जासवंत का फूल देता है। तो जमीन एक ही है, लेकिन पेड़ सबका अलग, उसका पत्ते का डिज़ाइन अलग, कलर अलग, फूल का सुगंध अलग। तो ये कोई बनाया नहीं होगा। आपका एक जो पेंटिंग बनाते हैं, फूल का पेंटिंग बनाते हैं, कभी पेड़ का पेंटिंग बनाते हैं, कभी जो दुनिया का पेंटिंग बनाते हैं, माउंटेन, सन। पेंटिंग बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए, आदमी चाहिए, कलाकार, आर्टिस्ट चाहिए। और दुनिया बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए, कोई तो होगा। आप देखो, स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल होते हैं, वीपी सर होते हैं, कमेटी होती है, स्टूडेंट्स कमेटी होती है, हाउसेस के कैप्टन होते हैं, स्कूल कैप्टन होते हैं, कितने बड़े बड़े कमेटी होती है, मेस कमेटी होती है। तभी कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, कुछ गड़बड़ चलते रहती है। इतना सब होने के बाद भी मैनेजमेंट कमेटी, दुनिया जो इतना बड़ा है, ये चलाने के लिए कोई कमेटी, मैनेजमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं होगा? होगा, अवश्य होता है। हम बोलते हैं ना, सन गॉड, मून गॉड, पवन, अग्निदेव, वायु देवता, जल देवता, बोलते कि नहीं? भूमाता, भारत माता की जय बोलते हैं, भूदेवी, भूमि। तो गंगा देवी बोलते हैं, जमुना देवी बोलते हैं, गोदावरी मैया बोलते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सभी देवता होते हैं। देवता कौन है? शक्तिमान व्यक्ति। जैसे प्रधानमंत्री देखो, हम में से एक व्यक्ति है, वो भी एक मनुष्य है, लेकिन उनके पास विशेष शक्ति है जो अपने पास नहीं है। वो पद है, प्रधानमंत्री का पद है जिसमें शक्ति है, पावर है। तो एक शक्तिमान व्यक्ति प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री। वैसे ही देवता होते हैं, सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता। तेरा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मतलब जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका एक देवता है। बुद्धि का देवता, मन का देवता, ज्ञान का देवता। समझते हैं? बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी, बुद्धि के देवता। और ज्ञान की देवता कौन है? सरस्वती मैया, ज्ञान की देवता। तो देखो, ये सब देवता कोई कल्पना नहीं है। जैसे सन, सूर्य, सो मच पावरफुल। एक सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में
शक्ति देता है, शक्ति देता है, प्रकाश, हीट, शक्ति, एनर्जी, लाइट देता है, शक्तिमान है सूर्य। वैसे चंद्र भी है। चंद्र, मून गॉड गिव्स जूस इन दी वेजिटेबल्स, ऑल द प्लांट्स। मून गॉड, मून जो है, मून लाइट गिव्स दी जूस ऑफ विटामिन्स इन द वेजिटेबल्स, ऑल द प्लांट किंगडम। तो ये सब वायु गिव्स प्राणवायु, ऑक्सीजन। एयर गिव्स प्राणवायु, ऑक्सीजन टू ऑल द लिविंग बीइंग्स। सो ये सब देवता है जिनका शक्ति है। समटाइम्स विंड बिकम्स सो टर्बुलेंट, लाइक अ साइक्लोन। कब, क्यों? कोई कंट्रोल किया है उसको, कोई उसको स्पीड दिया है? कभी कभी बारिश इतना जोरदार होता है, उसका एक डिपार्टमेंट है, उसे बोलते हैं रेन डिपार्टमेंट, वर्षा विभाग। उसका चीफ कौन है? इंचार्ज HOD देवेंद्र, किंग इंद्रा, देवेंद्र इज द किंग ऑफ दैट, इज द इंचार्ज फॉर दैट डिपार्टमेंट। पवन देवता, वायु देवता, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। पवन इज द डिपार्टमेंट, वायु देवता, उनके पुत्र कौन है? हनुमान जी। तो बोलने का बच्चों मतलब ये है, वी शुड नो नथिंग इज लाइक ओनली ब्लाइंड फेथ, इट्स ऑल साइंटिफिक। हम बोलते भारत माता की जय, क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूमि जो है, भूमि एक देवी है, सबकी माँ है, तो मनुष्य नहीं। All the living beings, plants, animals, insects, all the living beings are taking birth from the earth, भूमि। और जो यहाँ बालाजी भगवान है तिरुपति में, आप कभी गए हैं? गोविंदा वेंकटेश्वर स्वामी, तो उनके बाजू में 2 शक्ति होता है, देवी, भूदेवी, श्रीदेवी। तो भूदेवी कौन है? भूमि, भूदेवी, भूमि जो सबकी माता है। और श्रीदेवी कौन है? लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी, श्रीदेवी। सो यदि माता है तो पिता भी चाहिए, और पिता कौन हो सकते हैं? भगवान ही हो सकते हैं। यदि सबकी माता भूमि है, श्रीदेवी महालक्ष्मी माता है, तो पिता कौन होंगे? नारायण, लॉर्ड विष्णु। एंड ही हैज़ मेनी नेम्स। भगवान का अनेक नाम है, भगवान का अनेक रूप है। आप जो मानते हैं मान सकते हैं, लेकिन वो सब एक ही है, भगवान जो है। हाँ, देवता अनेक है, वायु देवता अलग है, अग्नि देवता अलग है, सूर्य देवता अलग है, लेकिन सबका मालिक 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ जितना डिपार्टमेंट्स है पूरे ब्रह्मांड में। तो उन सबका एक प्रमुख मुख्य हेड तो भगवान है, वो एक ही होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग सबको भगवान बोलते, नहीं, भगवान एक ही है, लेकिन देवता अनेक है जो शक्तिमान व्यक्तित्व। बच्चों, अंतिम बात ये बोलता हूँ, यदि हमें ये ज्ञान और विश्वास होगा कि दुनिया जो है अपने आप नहीं चलता है, बाई चांस अपने आप नहीं बना है, कोई बनाया उसको, साइंटिफिक है। और थोड़ा कभी वैदिक साइंस, अपना दुर्भाग्य है ब्रिटिश लोगों ने इस देश को गुलाम बनाया, तो वैदिक शिक्षा, वैदिक ज्ञान सब निकाल दिया अपने सिलेबस से, अपने स्टडीज से, अपने समाज से। क्या बोलकर? ऑल दिस बुक्स आर ओनली माइथोलॉजी बुक्स। क्या बोल दिया उन्होंने? माइथोलॉजी बुक्स बोल दिया, विच इज नॉट ट्रू, विच इज फॉल्स। सी, रामायण महाभारत इज नॉट जस्ट mythological book, it is the our bona fide history, इतिहास है। तो हमें समझना चाहिए कि बच्चों, वैदिक साइंस इज द रियल एंड द फर्स्ट साइंस ऑफ दिस यूनिवर्स। जो माता सरस्वती होती है, अंतिम 5 मिनट, ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स, ध्यान दीजिए। आई एम अवेयर ऑफ योर टाइम, मेस्ट टाइम आई नो, सो लास्ट 5 मिनट्स ध्यान दीजिए, आपके जीवन के विषय में। माता सरस्वती के हाथ में बुक्स होती है, वो वेद है। क्या है? वेद। कितना वेद होता है? 4। वेद क्या है? जो भगवान ने पहले ब्रह्मादेव को बनाया, अपने नाभि कमल से जो उत्पन्न किया ब्रह्मदेव को,
ब्रह्मदेव को प्रश्न आए, सवाल आया, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। तो तपस्या की है, तपस्या कर भगवान उनको दर्शन दिए, भगवान उनको ज्ञान दिए, वो है वेद। जैसे कोई कंपनी मोबाइल बनाता है, कोई व्यक्ति कोई कंपनी मशीन बनाता है, एक मैनुअल देती है, बुक देती है, छापती है, उसे बोलते हैं यूज़र गाइड। क्या बोलते हैं? यूज़र गाइड। वैसे भगवान ने भी जब पूरा अनंत विश्व बनाया, ब्रह्मांड बनाया, तो ब्रह्मा जी के हाथ में एक मैनुअल दिया। क्या दिया? एक मैनुअल, उसे बोलते हैं वेद। क्या बोलते हैं? वेद। देखिए, वेद कोई कल्पना नहीं है, वो ज्ञान है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। तो वेदों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल साइंस है। वेदों में मेडिकल साइंस है ना? आयुर्वेदा, क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। और मेडिकल साइंस है, टेक्निकल साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी है। तो सब कुछ है वेदों में। लाइफ साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, पंचांग जो निकालते हैं वेदों से। तो बच्चों, वेद जो है ब्रह्मा जी के फिर द्वारा देवी सरस्वती के पास आया। देवी सरस्वती कौन है? ब्रह्मा जी की शक्ति है, पत्नी है, शक्ति है ब्रह्मा जी की, देवी सरस्वती। तो फिर परंपरा में सरस्वती में और ज्ञान जो है अपने पृथ्वी पे आया है। अनादिकाल से ज्ञान है। ब्रिटिश लोगों ने हमें फंसाया, ये सब ज्ञान, वैदिक साइंस, अपना इतिहास छोड़कर हमें केवल मॉडर्न यूरोपियन ब्रिटिश लोगों का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, बायोलॉजी, इसमें ना मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। दुनिया कैसे बनी तो हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? केवल कल्पना पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी जो 100 साल पहले कोई बताया है। लेकिन बच्चों, अपने वैदिक साइंस में दुनिया कब बनी, कैसे बनी, कौन बनाया, क्यों बनाया, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, अपना सुख समाधान किसमें है और हमें कहाँ जाना है, ये सब कुछ ज्ञान अपने वेदों में दिया गया है। मुझे बोलना है, यदि हम थोड़ा जो भगवत गीता है, भगवत गीता, आज वेद पढ़ना संभव नहीं है, वेद बहुत अनंत है, लेकिन वेदों का इसेंस, सार संक्षिप्त में भगवत गीता में है। यदि हम कभी जीवन में एक बार, थोड़ा सा बुक, छोटा बुक है, 700 श्लोक गीता में है भगवत गीता, जो महाभारत का एक छोटा सेक्शन है। भगवान जो कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिए, उपदेश दिए जीवन का, भगवत गीता। बड़े बड़े महान विद्वान लोग इसको पढ़ते हैं और जीवन को महान बनाए हैं, सफल बनाए। हमने भी गीता पढ़ा है 24 साल से, हजारों बार पढ़ा है। तो हमें भगवत गीता से सब कुछ ज्ञान, सभी सवाल का जवाब मिला है, सबको मिल सकता है, कोई कल्पना नहीं है। हम अनुभव ले सकते हैं कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के धाम से आए। आप लोग स्कूल में आए हैं, पहले से हैं? हाँ, आए हैं। आपको याद है या भूल गए? याद है? आप जाना चाहेंगे वापस? हम नवोदय नहीं छोड़ेंगे सर। आपका वैकेशन टाइम आ गया, वैकेशन। आप यहीं रहते हैं, जाते हैं? हाँ, जाते हैं। आपको बोला नहीं रुको, 1 महीना रुकेंगे? नहीं सर, माता पिता मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जाऊँगा। तो हमें याद है हम कहाँ से आए हैं, तो हम जाना भी चाहते हैं वापस। तो बच्चों, वैसे ही भगवत गीता हमें, वेद हमें ये बताते हैं हम कहाँ से आए हैं। इसलिए फिर हमें जाने का भय नहीं होता है, जाने का चिंता नहीं होता। क्यों? हमें पता है कि हम कहाँ से आए हैं। देखो, अपनी बुद्धि से हम समझ नहीं पाते हैं, हम भूल चुके हैं कि हम दुनिया में जो आए हैं जन्म लेके, कहाँ से आए हमें याद नहीं। किसी को याद है? सर, मैं जन्म लेने से पहले यहाँ पे था, मैं वहाँ से आया हूँ और मैं जाऊँगा वहाँ पे। किसी को पता है? नहीं पता है। लेकिन हमें ज्ञान मिलता है भगवान से, जो हम कभी अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। हमें तो ये भी याद नहीं कि जो हम माँ की पेट में 9 महीना थे, हमें याद नहीं। माँ को याद है लेकिन हमें याद नहीं। हम माँ की गोद में जन्म के बाद 2-3 साल थे, हमें वो भी याद नहीं, लेकिन माँ को याद है। वैसे ही बच्चों, हमें कहाँ से आए याद नहीं, भगवान को याद है। बोलने का मतलब ये है कि यदि हमें लाइफ साइंस, लाइफ स्किल्स, लाइफ वैल्यूज़ सही रूप से समझना है, तो भगवत गीता एक सुंदर एक ज्ञान है जो पूरा दुनिया पढ़ता है। वहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, वो ये धर्म की बात है, वो बात नहीं है, जीवन की बात है। लाइफ साइंस कॉमन टू ऑल,
जैसे सन मून कोई ऐसा है क्या हिंदू का सन है मुसलमान का नहीं, ऑल भारत माता किसकी है? सबकी है, इसकी भी है, पेड़ पौधों को भी है, कुत्तों की भी, गधों की भी, सबकी माता है, सभी जीवों की माता है। वैसे भगवान भी जो है ज्ञान जो दिए हैं सबके लिए दिए हैं, जिसको भी बुद्धि है वो ज्ञान लेकर अपने जीवन को महान बना सकता है। तो बच्चों मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने बहुत शांति से सुना, अपने ध्यान से कुछ यहाँ पे मुझे मौका दिया बोलने के लिए। So I thank you all so much for your kind attention. I wish you all the best. May God bless you. किसी के मन में कोई एक दो सवाल होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं, आपको समझ में आया कुछ? बेसिक पॉइंट्स कुछ बताया मैंने कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म मतलब क्या है? जीव आत्मा जो अहम है, भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म। और मैं जो बताया दुनिया कोई ऐसी अपने आप नहीं बनी है, कोई तो बनाया है। कितनी अच्छी बात है, दुनिया को चलाता है मतलब क्या है? हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। somebody is there to control, don't worry, चिंता करने की आवश्यकता नहीं बच्चों। हम बच्चों को बोलते सब जगह, आप पीछे बोल सकते हैं, जगत के नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ, हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात है? हमें कभी चिंता आती है, सर पता नहीं एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा। बच्चों चिंता मत कीजिए, अपना बुद्धि से जितना होता है उतना पढ़ाई कीजिए, एज अ ड्यूटी, एज अ सेवा भगवान के लिए, और भगवान संभालेंगे। भगवान संभालते हैं। जैसे आपके माता पिता होते हैं तो आपको चिंता नहीं होती है, वैसे भगवान सबके माता पिता आपके साथ है, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। डू योर बेस्ट एंड गॉड विल ब्लेस यू। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो मैं आपके कैंपस में कल दिन तक हूँ, कल दोपहर तक हूँ मैं। किसी को मन में कुछ सवाल है, किसी को कुछ पूछना है, अभी इतना समय नहीं होगा, लेकिन कल दोपहर तक लंच तक मैं हूँ कैंपस में, तो कोई मुझे मिल सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू, टू सर्व यू। थैंक यू ऑल। Anyone of you come and say vote of thanks? Anyone of you student come and say vote of thanks? Good evening, everyone. First, I would like to take this opportunity to thank Swamiji for teaching us the life values and many more lessons about this precious life. Thank you so much, sir. I would like to thank you on behalf of this Vidyalaya and all the students. Thank you so much, sir.